السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت صحت کیسی ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ، ٹیکنیکل ٹو یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج کی میری دوسری ویڈیو سیاسی ٹپس کے بارے میں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم کورونا کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ تو کورونا ایک وبا ہے، وبا کی صورت میں پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ تو اس کو جو اپڈیٹ ہیں وہ یہ ہیں۔ تو یو اے ای میں 22,627 ہیں ٹوٹل کیسز ہیں، ریکور 7,931 ہیں، اور ٹیسٹ جو ہیں 214 ہیں۔ کل 210 تھیں، اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے میں صرف 4 ڈیتھ ہوئی ہے، 4 اموات ہوئی ہے۔ یہاں جو ہے کورونا جو ہے اتنا نہیں پھیلا ہے، بہرحال یہ ہے کہ کور میں ہے، یعنی اتنا پھیلاؤ نہیں ہوا ہے، اتنی ڈیتھ نہیں ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ یہاں کیونکہ ایک تو لا اینڈ آرڈر کا بہت اچھا نظام ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا ہے، صرف سٹیز کے اندر کھولا ہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے ایس او پی کا برابر عمل کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ پوائنٹ بہت کم ہے اور کیسز بھی بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ورلڈ میں یہ کیسز کی تعداد ہے 46,26,632 ہے ٹوٹل کیسز ہے۔ ریکور جو ہوئے ہیں 16,79,428 ہیں، اور ریکور بھی تعداد اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو دن گزرتے جا رہے ہیں ریکور پوزیشن بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 3,11,363، یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یورپین کنٹری میں ڈیتھ کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پاکستان کو لیتے ہیں، پاکستان میں 38,799 ٹوٹل کیسز ہیں، تو یعنی 38,800 لے لو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہماری ریکور کا جو پوزیشن ہے وہ ہے 10,880۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی پوزیشن ہے، ریکورنگ بڑھ رہی ہے ہماری، اور ڈیتھ کی جو پوزیشن ہے 834 ہے۔ یہ مطلب ریکور میں ہے، زیادہ ہائی نہیں ہے، لیکن آج کل تعداد بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہم نے لاک ڈاؤن اوپن کیا ہے، جس کی وجہ سے رش بڑھ رہا ہے، اور رش بڑھنے کی وجہ سے تعداد بھی بڑھ رہی ہے کیسوں کی، اور کیونکہ ہماری ٹیسٹ پوزیشن بھی بڑھتی جا رہی ہے، ہماری ٹیسٹ کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کیسز بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال پھر بھی انڈر کنٹرول ہے۔ ٹھیک ہے، تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسی طرح بچائے رکھے، اور اسی طرح پوزیشن انڈر کنٹرول رہے۔ اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ جو پوزیشن خراب ہے وہ ایران کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقی اسلامی ملک جتنے ہیں، سعودیہ ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، یو اے ای ہے، ان میں پاکستان ہے، ان سب کی پوزیشن جو ہے کنٹرول میں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو سیاسی ٹپس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ورلڈ لیول پر 2 بلاک بننے جا رہے ہیں۔ 2 بلاک میں ایک بلاک یو ایس اے کا ہے اور دوسرا چائنا کا ہے۔ ٹھیک ہے، چائنا کے ساتھ جو ملک ہیلپ کریں گے، امکان یہی ہے کہ کورونا کے بعد جو پوزیشن بننے والی ہے اس میں پاکستان ہے اور گلف کنٹری ہے، ترکی ہے، ملیشیا ہے، تو مین ممالک یہی ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے یورپین کنٹری میں سے بھی آئیں گے، یورپین کنٹریز کے بھی بلاک بنائے جا رہے ہیں، وہ بھی کچھ رشیا کے، کچھ جو ہے یو ایس اے کو ساتھ دیں گے، کچھ جو ہے چائنا کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح تو چائنا اور یو ایس اے کے درمیان جنگ کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں، لیکن پچھلے دنوں واشنگٹن پوسٹ میں ایک یو ایس اے کے ریٹائرڈ آرمی آفیسر نے کتاب چھاپی ہے۔ اس کتاب سے واشنگٹن پوسٹ میں جو کالم چھپے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ آج تک جتنی جنگوں کی تیاری بھی کی گئی ہے یو ایس اے نے چائنا کے خلاف کی ہے، وہ جنگیں کی نہیں ہیں، یعنی ذہنی طور پر وہ جنگیں ہار چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی ذہنی جنگ ہے، تو اس میں ہارتا ہے یا جیتتا ہے یہ تو امکان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں دونوں۔ دوسری طرف انڈیا بھی یو ایس اے کا ساتھ دے رہا ہے۔ انڈیا کیا ہے، وہ تو چائنا کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چائنا کو جو نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیک پر وار کرے گا، یعنی چھیڑ خانی کرے گا اور بعد میں یو ایس اے اس کو دبائے گا۔ اس سے چائنا پر پریشر بڑھ سکتا ہے۔ اگر چائنا کا ساتھ پاکستان نے دیا تو پھر انڈیا جو بیک ورڈ میں چلا جائے گا، بیک فٹ پہ چلا جائے گا، اور یو ایس اے وار میں آ جائے گا۔ چائنا اکیلا یو ایس اے کے لیے کافی ہے۔
ठीक है। चाइना की सबसे बड़ी पोजीशन ये होगी कि वो बहरकायल में जितने भी समुद्री बेड़े हैं अमेरिका के, वो उनको टारगेट करेगा। अगर वो उनको टारगेट करता है तो इसका मतलब ये है कि चाइना वो वार जीत सकता है। दूसरा, जो जहाज़ हैं उन बेड़ों के ऊपर हैं जहाज़, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी लॉन्ग रेंज मार कर सकें। अगर दरमियान से बेड़े हटा दिए जाते हैं तो वो लॉन्ग रेंज पर मार नहीं कर पाएंगे, उनका ईंधन ख़त्म हो जाएगा। ईंधन हासिल करने के लिए उनको किसी साथी मुल्क की हेल्प चाहिए होगी। उसमें वाहिद मुल्क इंडिया है, भूटान है या नेपाल है। भूटान और नेपाल ऑलरेडी चाइना का साथ दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने इंडिया को वार्न कर दिया है, ठीक है। ये जो नया नक्शा बन रहा है, इस नए नक्शे के मुताबिक जो है अब जो है गेम बड़े लोगों के दरमियान है, बड़े मुल्कों के दरमियान है। अब ये ऊँट किस करवट बैठता है ये तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। इसमें एक हमारे पाकिस्तान में भाषा डैम की तामीर के सिलसिले में न्यूज़ आई है, उसका इफ्तिताह भी हो चुका है, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क को थोड़ा तकलीफ़ है उससे। आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास जो डैम हैं उनमें सिर्फ 30 दिन की कैपेसिटी है, यानी हम 30 दिन का पानी स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई पानी का ज़ख़ीरा नहीं है। अगर हम ये डैम बनाते हैं तो हमारे ज़ख़ीरे की जो कंडीशन है वो बढ़ जाएगी, यानी पानी ज़ख़ीरा करने की जो कंडीशन है वो बढ़ जाएगी। इस वक्त हमारा जो पानी है जो दरियाओं से आता है, पहाड़ों से आता है, बर्फ़ पिघलती है, वो पानी हमारा 20% जो हम स्टोर करते हैं और 80% समंदर में चला जाता है। तो हम इस पानी को स्टोर करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे हमारे हमसाया मुल्क को तकलीफ़ है। उनको तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। बहरहाल उसने जो ये बयान दिया है उसका जवाब चाइना ने दिया है। चाइना ने कहा कि ये हमारा दोनों का मसला है, आप बीच में टांग मत अड़ाओ। तो ये तो उसको तड़ी दे दी है चाइना ने, ठीक है। बहरहाल ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। वो कैसे करेगा, वो वहाँ तक पहुँच तो नहीं सकता, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोग हैं वो हमारे दुश्मनों को फॉलो करते हैं, यानी उनके एजेंट हैं। वो उनके ज़रिए पैसे सप्लाई करेगा, पूरे मुल्क में हंगामे करने की कोशिश करेगा, और जो उस इलाके के लोग हैं, डैम के इलाके के लोग, उनको ख़रीदने की कोशिश करेगा। और हमारी आर्मी को, हमारे मुल्क को आंखें खुली रखनी चाहिए, ऐसे दुश्मनों से बचना चाहिए। और वज़ीर सिंध के सूबाई वज़ीर ने एक पिछले दिनों बयान दिया कि पंजाब हमसे ज़्यादती कर रहा है। क्या ज़्यादती कर रहा है कि पंजाब हमें जो पानी देता है उसमें से बिजली निकाल लेता है और हमें फोका पानी मिलता है, और फोके पानी से हमारी फसलें जो है अच्छी नहीं होती हैं, यानी पानी के अंदर से पावर निकाल लेता है। क्या बात है। मसूब को या तो तालीम की कमी है, या इसको डैम पे ले जाओ, वहाँ जाकर 2 डुबकियाँ लगवाओ, फिर देखो उसे कि पानी कैसे जाता है और कैसे हम लोग पानी निकालते हैं। मसूब को ये भी पता नहीं है डैम से बिजली कैसे बनती है और पानी कैसे आता है, लेकिन सियासी दुकान चमका रहे हैं, ठीक है। सियासी उसमें हमारे कुछ और भी लोग हैं, बार उनके नाम नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं और जानने वाले लोग हैं। अगर वो भी ऐसी बातें करेंगे तो मेरा ख्याल है उनको या तो पागल खाने में दाखिल किया जाए या उनको जेलों में डाला जाए, ठीक है। वो आर्मी भी समझती है क्या करना है इसके साथ, हमारी खुफिया एजेंसियाँ भी समझती हैं। फ़िलहाल तो वो नैब के हथकंडे में चढ़े हुए हैं और इंशाल्लाह नैब भी उनको सीधा कर देगी, उनके सॉफ्टवेयर चेंज कर देगी, ठीक है। अभी मैं आपको डैम के मुताबिक थोड़ा आगाही करा दूँ। ये डैम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या तरीक़ाकार है और कैसे बिजली बनती है। क्योंकि बेसिकल हम उसी इलेक्ट्रिकल के शोबे से हैं तो हम थोड़ी आपको टिप्स देते हैं, यानी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो चाहिए, लेकिन हम आपको थोड़ा सा आगे करते हैं। डैम एक तालाब को कहा जाता है। ये बहुत बड़ा तालाब होता है, आमतौर पर पहाड़ों के सेंटर में बनाया जाता है, जो मैदानी इलाका होता है उसमें बनाया जाता है, और ये सतह ज़मीन से ऊपर होता है, सतह ज़मीन से ऊपर होता है। फिर इसका जब पानी इकट्ठा किया जाता है, डम किया जाता है, तो इसकी निकासी के लिए पाइप लगाए जाते हैं और आगे गेट लगाए जाते हैं। बहुत हैवी गेट होते हैं जो पानी को होल्ड करते हैं। उन गेटों के नीचे या उन पाइपों के नीचे जहाँ पानी नीचे गिरता है, पानी नीचे बड़ी स्ट्रोक से गिरता है, बड़ी पावर से गिरता है, वहाँ टर्बाइनों के फ़ैन लगाए जाते हैं। टर्बाइन होती है, उसकी एक शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट के ऊपर फ़ैन लगे होते हैं। वो फ़ैन बहुत पावरफुल होते हैं। तो वो शाफ्ट जो है एक सिरा तो फ़ैनों के फ़ैन होते हैं, दूसरे सिरे पर जाकर हमारे अल्टरनेटर से जुड़ी होती है, ठीक है। वो शाफ्ट पे ऊपर पानी, वो फ़ैन के ऊपर पानी गिरता है, बड़े ज़ोर से और बड़े पावर से गिरता है।
पाइपों के ज़रिए भी गिरता है, बाज़ औक़ात वो जो हमारे गेड़ हैं उन गेड़ों के ज़रिए भी गिरता है। जब गेड़ हम खोलते हैं सीधा पानी उन फ़ैनों के ऊपर आता है, तो पानी फ़ैनों के ऊपर आता है तो वो फ़ैन चलना शुरू हो जाते हैं बड़ी स्पीड के साथ। जितना पानी की स्पीड बढ़ती जाएगी वो शाफट की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर कम करना होगा तो हम थोड़ा गेट बंद कर देंगे, जैसे शाफट टूटने का ख़तरा ना हो। ठीक है, तो इस तरह हमारा अल्टरनेटर जो है वो भी ऑटोमेटिक सप्लाई पैदा करना शुरू कर देता है। ठीक है, मैग्नेट कोयल होते हैं उसके ज़रिए वो सप्लाई पैदा करता है। वो सप्लाई जब बस बारों के ज़रिए, यानी जो बस बारें होती हैं उनके ज़रिए सप्लाई पैनल में पहुंचाई जाती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है हमारा पैनल है उसमें पहुंचाई जाती है। वहाँ से ये सप्लाई ट्रांसफार्मर में सप्लाई होती है, जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, वहाँ से ये सप्लाई जाती है हमारे जो हमारा टावर लगे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उसे हम स्विच यार्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ज़बान में उसे स्विच यार्ड कहा जाता है। वो स्विच यार्ड में चली जाती है सप्लाई। स्विच यार्ड में हमारे बड़े बड़े लाइनों के ऊपर मीटर लगे होते हैं। ठीक है, हम जिस लाइन को सप्लाई देना चाहते हैं वो लाइन का ब्रेकर हम ऑन करते हैं और वो सप्लाई उसको चली जाती है और हमारा मीटर जो है चालू हो जाता है। इस तरह हमारी लाइन की जो रीडिंग है वो आती रहती है। ठीक है, तो इस तरह हमारी सप्लाई का सिस्टम तमाम लाइनों में कन्वर्ट किया जाता है और तब्दील किया जाता है। जिसको सप्लाई चाहिए होती है हम उस लाइन के ज़रिए उसको फराहम करते हैं। फिर आगे वापडा के ग्रिड स्टेशन होते हैं। ग्रिड स्टेशन वो होते हैं जिनसे मुख्तलिफ़ सिटियों को सप्लाई, जो शहर हैं उनको सप्लाई दी जाती है। तो ये जो लाइनें हैं सीधी उस ग्रिड स्टेशन के अंदर जाती हैं। ग्रिड स्टेशन पर फीडर के ज़रिए, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के फीडर होते हैं, उनके ज़रिए वो शहरों को सप्लाई करता है। और इसमें 2 मीटर लगे होते हैं। पहला मीटर स्विच यार्ड में लगा होता है और दूसरा मीटर आपके वापडा ग्रिड स्टेशन के अंदर लगा होता है। ठीक है, पहले ये होता था कि जो IPPs का मसला चल रहा है उसमें ये होता था कि हमारी रीडिंग जो है, हमारा जो स्विच गेयर होता था वापडा का, वहाँ से ली जाती थी। अभी इन्होंने 2 नंबरी की है, हमारी जो रीडिंग है स्विच यार्ड से ली जा रही है। अब स्विच यार्ड और ग्रिड स्टेशन का जितना फासला है, उस फासले के अंदर जितने लाइन लॉसेज हैं, जितने वोल्टेज अप एंड डाउन होते हैं, वो सारे हमारे खाते में आ जाते हैं, यानी कस्टमर के खाते में आ जाते हैं। वो बिजली पैदा करने वाले IPPs को नहीं जाते, वो सारा कुछ हमारे ऊपर है। वो स्विच यार्ड से जो सप्लाई आउट होती है वो उनके चार्जेस देता है और वापडा फिर सारे चार्जेस हमारे ऊपर डाल देता है पूरे टैक्स के साथ। फिर उसके बाद ग्रिड स्टेशन से जो हमारे घरों तक सप्लाई आती है उनमें कुछ लाइन लॉसेज होते हैं। लाइन लॉसेज का मतलब है ड्रॉप, यानी ये जो बिजली ड्रॉप होती है वो 30 से 40% तक होती है। ये 30 से 40% तक जो सप्लाई के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं या लाइन लॉसेज होते हैं उनको हमारे ऊपर डाल दिए जाते हैं, वो भी हमारे बिल के शामिल होते हैं। इसी तरह जो वापडा के मुलाजमीन हैं उनके बिल नहीं लिया जाता, वो भी हमारे ऊपर डाल दिए जाते हैं। इसी तरह MNA MPS के जो लाइनें दी जाती हैं उनको कुछ वोल्टेज की कुछ कंसेशन होती है। कितना यूनिट होती है ये मालूम नहीं है, 500 या 600 या 700 यूनिट की उनको कंसेशन होती है, ये मेरे को मालूम है। लेकिन वो भी हमारे ऊपर डाल दी जाती है टैक्सेस की सूरत में, लाइन लॉसेस की सूरत में, ठीक है, सेल टैक्स की सूरत में, वो भी हमारे ऊपर डाल दी जाती है। इस तरह हम बिल कम पे करते हैं और लाइन लॉसेस और टैक्सेस ज़्यादा पे करते हैं। ये मेरे भाई वो सिस्टम है जिस सिस्टम के ज़रिए हमारे तक बिजली पहुंचती है। ये सिंध के जो मसूफ़ ने फरमाया है ना, पानी से बिजली निकाल ली जाती है, ये पानी से नहीं निकलती मेरे भाई। पानी सिर्फ उस फैनों को चलाता है, बिजली टरबाइन पैदा करती है। ठीक है, इसी तरह हमारे जहल जो लोग हैं वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं। मेहरबानी करें, अपना इल्म अपने पास रखें। ठीक है, इनको थोड़ा डेमो के साथ ले जाओ, वहाँ जाकर दिखाओ बिजली कैसे बनती है। ठीक है, ये जो हमारे जो वडेरे लोग होते हैं या ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो पोल टैक्स में आ जाते हैं, उनको पोल टैक्स की अल्फ़ बे का भी पता नहीं होता है, हुकूमत कैसे चलाई जाती है कैसे नहीं। ये इल्म की कमी है। हमारा सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया, वहाँ इल्म की कमी है। ठीक है, टेक्निकल तालीम तो है ही नहीं, बड़े बड़े शहरों में है लेकिन देहात और गाँव में नहीं है। तो ये लाइल्म लोग, वडेरा लोग सियासत में आ जाते हैं,
सीटें जीत जाते हैं, क्योंकि उनके मुजरे बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़मीनें ज़्यादा होती हैं, कब्जे कर रखे होते हैं इन्होंने बड़े बड़े गाँवों पर। तो ये लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर उसमें असम्बली में पहुँचने के बाद जो ज़्यादा मेंबर लेके आता है उनको फिर वज़ीर बना दिया जाता है, और ये अनपढ़ और जहल लोग हमारे वज़ीर बन जाते हैं, जिनको ना तो कानून के बारे में पता होता है। अभी एक सहाफ़ी ने सिंध के एक मिनिस्टर से बात की कि ये 18वीं तरमीम क्या है, उसको इसके अलफ़ के बारे में पता नहीं है। भाई वो तरमीम है, वो जरदारी साहब ने पेश की थी, वो अच्छी थी, हमारे लिए अच्छी थी। अब ये क्या है, कैसे पास हुई है, कैसे नहीं हुई है। और ये एक और भी खबर आई है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस 18वीं तरमीम के बारे में थोड़ा जानना चाहा, तो मालूम पड़ा कि ये तो टेबल पर पास हुई है, बहस भी नहीं हुई इस पर, क्योंकि मौजूदा हुकूमत और पंजाब हुकूमत के जो सरबराहान थे शरीफ बरादर, उन्होंने मिल बैठ कर ये काम किया था कि सूबों को मरकज़ से जुदा किया जाए, खुद मुख्तियारी दी जाए। ये उनकी मिली भगत से मंजूर हुई है। इसमें ना तो पाकिस्तान का फ़ायदा है, ना पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा है। तो हमारा फ़ायदा तब होगा जब हमारे काम होंगे, जब हमारे काम ही नहीं होंगे तो हमें क्या किसी बजट से, किसी वजीर से, ठीक है, हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे यहाँ जो मज़दूर है और गरीब लोग हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। कौन किस कैटेगरी का है, हमारे शनाख्ती कार्ड में कैटेगरी है ही नहीं। बस वो पाकिस्तानी है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है। जब वो सर्विस ज्वाइन करता है तो फिर वो एक कैटेगरी में आ जाता है, यानी ये पाकिस्तान का किसी इदारे का मुलाजिम है। लेकिन जो लेबर तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, जो छोटा कारोबारी है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। मेरे भाई, उनको चाहिए कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि मुसीबत और वबा के दिनों में गवर्नमेंट के पास एक डाटा आ जाता है, भाई इस इलाके में इतने मजदूर रहते हैं, इतने छोटे कारोबारी हैं, इतने दिहाड़ीदार हैं, इतने गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है। वो एक डाटा आ जाता है, उस डाटे के ज़रिए वो फिर उनको पैसा तकसीम किया जाता है, उनके अकाउंटों में डाल दिया जाता है और वो अपने आप निकालते रहते हैं। इसी तरह अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री में जितनी भी रिलीफ दिए गए, उन्होंने किसी का डाटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं की, किसी से पूछा तक नहीं है, खामोशी से उनके बैंकों में डाल दिया गया है, उनके अकाउंटों में डाल दिया गया है। कोई लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई अंगूठे की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई जो शनाख्ती कार्ड आपका ओवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि हमारे जो लोग मर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको हम शनाख्ती कार्ड ऑफिस जाकर उनको डेथ क्लियर नहीं करते। तो उनके शनाख्ती कार्ड पड़े होते हैं, उनकी हर चीज़ पड़ी होती है। अब गवर्नमेंट के पास उनका रिकॉर्ड नहीं होता है, भाई वो डेथ हो गए हैं, उनका शनाख्ती कार्ड ओवर हो चुका है, क्या कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जब हमारे इलेक्शन होते हैं वही शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होते हैं, डाके होते हैं, चोरियाँ होती हैं, वही शनाख्ती कार्ड उस इलाके में छोड़ दिए जाते हैं। पता चलता है ये आदमी तो 20 साल पहले मर गया था। तो इस तरह की जो पॉलिसियाँ हैं, इनको हमें कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले हमें लेबर रजिस्टर करानी होगी, दूसरा छोटे कारोबारी लोग हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, तीसरा ये है कि हमें अपने मरने वाले को, जो इसकी डेथ हो चुकी है, उसको शनाख्ती कार्ड जमा कराना पड़ेगा, उनका डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इस तरीके से हमारी कैलकुलेट आबादी वो भी सामने आ जाएगी और हमारे रजिस्टर्ड मजदूर, रजिस्टर्ड कारोबारी हज़रात के सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे इसका असर हमारे बिलों पर भी पड़ेगा। मालूम पड़ेगा ये तो लेबर का आदमी है, चलो इसका बिल माफ़ कर दो, लेकिन अभी कोई डाटा नहीं है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के किसका बिल माफ़ करे, किसका ना करे, पता चलता है किसी बड़े इंडस्ट्रियल का बिल माफ़ हो जाता है और गरीब को बिल ठोक दिया जाता है। ये हमारे रजिस्टर्ड ना होने की वजह से है, ठीक है। तो अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए ताकि गवर्नमेंट के पास आपका डाटा चला जाएगा। गवर्नमेंट कोई भी रिलीफ फंड में आपको इमदाद देना चाहेगी तो वो आपको दे पाएगी। दूसरी बात ये, जो लोग मर चुके हैं उनका भी डाटा जमा कराइए ताकि पता चले गवर्नमेंट को कितने आदमी हमारे पास जिंदा है और कितने फौत हो चुके हैं।
جو فوت ہو چکے ہیں تاکہ ان کے جو ووٹنگ لسٹیں ہیں ان میں سے بھی خارج کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ میری سیاسی ٹپس تھی. کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے, ٹھیک ہے, میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان کو اب آن ریکارڈ ہونا چاہیے, آف ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو ہمارے گاؤں کے علاقوں میں جب روڈ آتا ہے, روڈ تو ایک ترقی کا زینہ ہے, لیکن کچھ جاہل لوگ ہمارے روڈ کے آگے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. بھائی کیوں رکاوٹیں ڈال رہے ہو؟ یہ ہمارے علاقے کی چوری بڑھ جائے گی. یہ چوری تو رہے گی چاہے آپ روڈ بنائیں یا نہ بنائیں, چوری ختم نہیں ہوتی, ڈاکے بھی ختم نہیں ہوتے, لیکن آپ کی ترقی کا زینہ جو ہے روڈ ہے وہ بند ہو جائے گا. آپ شہر تک جلدی نہیں پہنچ پائیں گے, آپ کو میڈیکل فیسلٹی نہیں ملے گی, آپ کے بچے سکول نہیں جا پائیں گے. تو آپ شہر تک جلدی نہیں پہنچ پائیں گے بلکہ دیر لگے گی. ٹرانسپورٹ والا بھی نہیں پہنچ پائے گا آپ تک, اور آپ سے کرایہ زیادہ مانگے گا. روڈ ہوگی تو کم مانگے گا. ٹھیک ہے, اور مین لائن یہ ہے کہ آپ کا جو روڈ ہے مین روڈ سے مل جائے گا, وہاں سے آپ کو مین ٹریفک مل جائے گی. مثال ہمارا علاقہ جو ہے جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے, وہاں روڈیں بہت کم ہیں اور دیہات گاؤں بہت زیادہ ہیں, اور ہمارے جوہلا بھی یہی کام کرتے ہیں کہ جب روڈ آتا ہے تو روک لیتے ہیں راستہ. بھائی چوریاں تو پہلے بھی ہو رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی, زیادہ ہو رہی ہیں, لیکن روڈ کا راستہ کیوں روک رہے ہیں بھائی؟ روڈ کے آپ اگر گاؤں تک پہنچ جائے گا تو آپ کے گاؤں کی ترسیل شہر تک آسان ہو جائے گی. یہ ہمارے یہاں علم کی کمی ہے. ٹھیک ہے, اگر جن کو علم ہے بھی صحیح, وہ اپنا علم استعمال نہیں کر رہے, عوام کی فلاح کے لیے نہیں استعمال کر رہے, اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اپنے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کیجئے, عوام کی فلاح کے لیے استعمال کیجئے. دوسروں کی فلاح چاہیں گے تو آپ کل فلاح پائیں گے, نہیں تو نہ آپ کا بھلا ہوگا, نہ عوام کا بھلا ہوگا, اور نہ پاکستان کا بھلا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جو نئی جنریشن آئے وہ ہماری طرح باہر ملکوں میں دھکے نہ کھائے, اپنے ملک میں رہ کر روزگار کما سکے. ٹھیک ہے, یہ میری سیاسی ٹپ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور کمنٹس میں اچھے سے کمنٹس بھی دیجیے. اور یہ یاد رکھیے اس کو شیئر کرنا مت بھولیے. اگر ویڈیو میں کوئی نقص آپ کو نظر آئے یا کوئی ایسی چیز نظر آئے تو آپ اس پر بھی کمنٹ دیجیے, تاکہ آئندہ پر وہ غلطی نہ ہو اور آئندہ ویڈیو جو بنے وہ اچھی طریقے سے بنے. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ.